डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको कराया था डिड द वोमेन हैव ए रिवोल्यूशन, डिड द वोमेन पार्टिसिपेटेड इन द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कि महिलाएं जो थी दे पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्यूशन वेरी एक्टिवली, and most of the women of the third state had to earn their living. And to discuss, in order to discuss and voice their interest, they opened their political clubs, and they opened their political clubs and newspapers. And so they wanted to enjoy equal political rights. They wanted that they should be elected in assembly, and held a uh, a position also. So in the early years, revolutionary government took some steps to improve the lives of women. Schooling was made compulsory for the girls, like that. And so the women's struggle for equal political rights continued. But in the Reign of Terror, Robespierre ordered to close their political clubs and banned their activities also. Um, and many of the women who were active in politics, they were executed also. So women's struggle for equal political rights, and equal wages continued for the next 200 years. And finally, in 1946, in France, women got the right to vote. आज का आपका टॉपिक है अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, दास्ता का अंत. So the most important social reform of the revolutionary government, the most important social reform of the revolutionary government was to end the slavery, was to abolish slavery. जैकोबिन की जो सरकार थी उसका सबसे अधिक जो सामाजिक जो सुधार था, क्रांतिकारी सुधार था, वो ये था कि उसने दास्ता को ख़त्म किया था. द कैरिबियंस, इन द कैरिबियंस, सेंट डोमिंगो, मार्टिन, और these were the colonies. Martin, Guadeloupe, and Saint Domingo. These were the colonies in Caribbean, and they were the important suppliers of commodities like indigo, sugar, tobacco, etc. But the Europeans were reluctant. Europeans were reluctant to go and work in distant and unfamiliar land. This meant that there was shortage of labor on the plantation. यूरोपियन जो थे वो दूर और अपरिचित जगह पर जाना नहीं चाहते थे, और इसका मतलब था कि प्लांटेशन जो थे बागानों में लेबर की कमी थी. And this was met by the triangular slave trade between Europe, Africa, and America. And the slave trade began in the 17th century. So जो प्लांटेशन में लेबर की कमी थी उसके लिए फिर एक स्लेवरी ट्रेड शुरू हुआ अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बीच में. और ये जो स्लेव ट्रेड था, इट बिगेन इन 17th century. So the French merchants sailed from the ports Bordeaux and Nantes. They were the important ports of France. So the French merchants sailed from Bordeaux and Nantes to African coast. There they bought slaves from the local chieftains. Branded and shackled, they were packed into the ships for 3 months' voyage across Atlantic to the Caribbean. Then the plantation owners, these slaves were sold to plantation owners. They were bought by the plantation owners. And so the ports like Bordeaux and Nantes became rich due to the flourishing slave trade. आपका जो स्लेव ट्रेड था 17th सेंचुरी में शुरू हुआ
फ्रांस के जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे बॉर्डेक्स एंड नैंतेस, वहाँ से व्यापारी चलते अफ्रीकन कोस्ट पे जाते, वहाँ पे जो मुखिया थे, स्थानीय मुखिया थे, उनसे दास खरीदते थे। फिर वो अटलांटिक होते हुए कैरिबियन जाते, उनको स्लेव्स को समुद्री जहाज़ों में ठूस दिया जाता था, उन जंजीरों से बांध दिया जाता था, और फिर उनको 3 महीने की यात्रा करनी पड़ती थी। उसके बाद वो जो थे वो कैरिबियन पहुंचते थे, वहाँ पे जो प्लांटेशन ओनर्स उनको खरीद लेते थे। तो इस तरह से जो फ्रांस की जो पोर्ट्स थी बॉर्डेक्स एंड एंटिस, वो इसलिए फली फूली इस दास व्यापार के कारण वो काफ़ी अमीर हो गई। So in the 18th century there was little criticism. In the 18th century there was little criticism of slavery trade. 18th सेंचुरी में तो ये जो दास व्यापार था इसकी काफ़ी कम आलोचना हुई थी फ्रांस के अंदर। जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली हैड मैनी डिबेट्स, उसने कई डिबेट्स की टू एक्सटेंड द राइट्स ऑफ मैन टू ऑल द फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लिविंग इन फ्रेंच कॉलोनीज। जो नेशनल असेंबली थी उसने काफ़ी डिबेट करवाए कि जो उनको नागरिकों को जो अधिकार दिए गए थे वो उन फ्रांसीसी प्रजा को भी दिए जाए जो कि उनके फ्रांसीसियों के उपनिवेश थे। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ, इसने कोई कानून लागू नहीं किया, बिकॉज दे फियर्ड फ्रॉम द बिजनेसमैन, दे फियर्ड फ्रॉम द बिजनेसमैन हुज बिजनेस या हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड। क्योंकि इनको डर था कि जो व्यापारी हैं वो बिजनेसमैन है, वो उनका विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बिजनेसमैन थे उनका जो इनकम थी वो दास व्यापार पर निर्भर करता था, बिजनेसमैन की इनकम दास व्यापार पर निर्भर करती थी। सो इट वाज द कन्वेंशन लेजिस्लेटेड ऑल स्लेव टू फ्री ऑल स्लेव्स। जो 1794 के अंदर जो कन्वेंशन थी उसने सभी दासों को मुक्त करने का आदेश दे दिया। बट इट रिमेन्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय तक ऐसा रहा। आफ्टर 10 years नेपोलियन री इंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी। 10 साल के बाद नेपोलियन ने जो दास्ता थी उसको दोबारा से शुरू कर दिया। जो प्लांटेशन ओनर्स थे, प्लांटेशन ओनर्स understood their freedom as the right to enslave African Negroes to pursue their interest। जो प्लांटेशन ओनर्स थे वो ये सोचते थे कि ये उनका अधिकार है कि अफ्रीकन निग्रोस को स्लेव बनाना और इससे इस तरह से अपने हितों को पूरा करना। एंड इट वाज फाइनली इन 1848 कि जो स्लेवरी थी वो फ्रेंच कॉलोनी से ख़त्म कर दी गई। 1848 के अंदर जो स्लेवरी सिस्टम था वो फ्रेंच कॉलोनी से ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह से आपने देखा कि जो एबोलिशन स्लेवरी कैसे ख़त्म हुआ। जैकोबिन जो गवर्नमेंट थी उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म था वो ये था कि इट एबोलिश स्लेवरी। और जो कैरिबियन colonies थी, मार्टिन, ग्वाडेलूप एंड सैंट डोमिंगो, they were the important suppliers of commodities like indigo, etc. And slavery trade began in 17th century. Important ports of France were Bordeaux and Nantes, and they became rich due to the flourishing slave trade. And in 1794 convention legislated to free all slaves। 1794 में कन्वेंशन ने सभी जो दास थे उनको मुक्त कर दिया। बट आफ्टर सम टाइम नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। कुछ समय के बाद नेपोलियन ने दोबारा से जो स्लेवरी सिस्टम था उसको शुरू कर दिया। एंड इट वाज फाइनली इन 1848 दैट स्लेवरी सिस्टम स्लेवरी ट्रेड जो वाज अबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज। 1848 के अंदर जो ये स्लेवरी सिस्टम था इसको फ्रेंच कॉलोनीज में समाप्त कर दिया गया। सो दो तीन टर्म्स दी हुई हैं। एमनिसिपेशन, द एक्ट ऑफ फ्रीइंग, मतलब दासों को मुक्त करना, और एक है निग्रोस, ए टर्म यूज फॉर इंडिजिनियस पीपल ऑफ अफ्रीका। निग्रोस, ए टर्म यूज फॉर इंडिजिनियस
people of Africa south of Sahara. South of Sahara, and it is a derogatory term and it is not in common use now. So इसमें पिक्चर दिखाई हुई है साइड में 1794 के अंदर, and it describes the emancipation of slaves. The tricolor banner on top carries the slogan the rights of man. The inscription below reads the freedom of the unfree. और एक फ्रेंच वोमेन दिखाई हुई है. A French woman prepares to civilize the African and American Indian slaves by giving them clothes, by giving them यूरोपियन क्लोथ, बाय गिविंग दम यूरोपियन क्लोथ्स टू वियर. मतलब एक फ्रेंच वोमेन दिखाई हुई है जो कि अफ्रीकन्स जो स्लेव्स हैं उनको यूरोपियन कपड़े देंगे पहनने के लिए. सो ये था आज आपका अबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी. इसे ध्यान से पढ़ना, समझ आ जाएगा. इस पर क्वेश्चन भी लिखाऊंगी. आपने जो अब तक का काम है वो सभी की नोटबुक में कंप्लीट होना चाहिए. और आज का इतना ही है. एक टॉपिक बचा है वो कल करवाऊंगी. थैंक यू.